Hello friends, greetings of the day. So again we are here with the sixth lecture of your solid state. Okay, so in this particular lecture what we are going to discuss is about uh, number of particles in unit cell. How will you get to know how many number of particles in unit cell are there? If I ask you a question that, let's say I'm giving you X gram of metallic crystal and I want you to know, I want you to identify or find out how many particles are there in this particular X gram of metallic crystal, or how many unit cell is there. Okay, so today we are going to understand that, but before that let us revise what we did in last lecture. Okay, so what we did was packing efficiency, right, and coordination number, and what kind of lattices are there, right, uh, voids and other stuff. Okay, so let me just summarize it. So what we did was we knew lattice. Very famous lattices what we know is simple cubic, body centered cubic, and face centered cubic, or you say hexagonal close packing. Remember? Okay, so let me write here coordination number of atoms, right? And third one, what it was, packing efficiency, right? Each particular unit cell, in that how many particles were there and how were they arranged. According to that we had seen efficiency of packing, right? So the first one was simple cubic, right? Okay, so in simple cubic the coordination number was 6, right? It was 6. And how was it 6? Because there were 4 particles touching each other in same row or same layer, I can say, and there was one particle, it was touching one particle above the layer and one particle below, so hence total was 6. And what was the packing efficiency? It was 52.4%, right? Let's go to the next one, that is BCC, that is body centered. Okay, body centered was 8. The coordination number of body center was 8 because there were 4 particles, they were touching the above, and there were 4 which are below. So टोटली कितना था? 4, जिसमें से 8, जिसमें 4 जो थे वो ऊपर के लेयर को टच कर रहे थे और 4 नीचे वाले. तो टोटल कितने जन को टच कर रहा था? एक पार्टिकल. It was touching total 8. Therefore the coordination was BCC was 8, and hence the packing efficiency was more as compared to simple, that was 68%, right, if you remember. And talking about the third, that is FCC, or we can say HCP, the coordination number was 12. hexagonal था, याद है? And हाँ, तो कैसे 6 12 था? 6 was from the same layer, 6 तो same layer का था, 3 was from above layer, and 3 was from below layer. तो total it was 12. Okay, and what was the packing efficiency? जितना ज़्यादा coordination number उतना ज़्यादा packing efficiency. तो packing efficiency कितना था? 74%. Okay, so this is what we did in the last lecture. So in today's lecture what we are going to discuss is number of particles, and unit cells. Number of particles और unit cell find करेंगे हम कब? when they have given x gram of metallic crystal. भाई लोग, अगर मैं आपको ये x ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल देता हूँ और मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ इसमें कितने पार्टिकल्स है या फिर कितना यूनिट सेल है, तो आपको बताना है. सो हाउ विल यू फाइंड दिस आउट? ओके, इसके लिए हमारे पास कुछ टेक्निक है, देयर आर सम फॉर्मूलाज. ओके, सो टू फाइंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, व्हाट ऑल थिंग्स वी नीड, व्हाट ऑल पैरामीटर्स वी नीड, है ना? ये दोनों फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? गिवन मास दिया है मेटल का, और हमें बोला है कि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड करो, तो हमें क्या क्या चाहिए, राइट? क्या क्या रिलेशनशिप लगेगा?
तो सबसे पहला पैरामीटर जो होगा हमारे लिए वो तो सबसे पहला होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, सबसे पहला है ना। ओके, और क्या लगेगा? वी वुड रिक्वायर्ड वॉल्यूम। क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम चाहिए था, किसका? यूनिट सेल का। अच्छा, वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं? ए से लिखते हैं, याद है ना, ए क्यूब। ए तो एच था, वॉल्यूम ए क्यूब ऑफ यूनिट सेल। वी वुड नीड दिस। ओके, व्हाट एल्स वी नीड? और क्या रिलेशनशिप है? हमें डेंसिटी भी चाहिए थी, याद है ना, लास्ट टाइम क्या था? डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल क्या है? रो। और क्या था? वी वुड नीड मोलार मास, दैट वाज कैपिटल एम, राइट। ओके, अगर मुझे ये सारी चीज़ें पता है, ये पैरामीटर्स पता है, तो आई हैव सर्टेन फार्मूला जिससे मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड कर सकता हूँ, वॉल्यूम फाइंड कर सकता हूँ, नंबर ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर सकता हूँ। आई कैन फाइंड मैनी स्टफ्स। ओके, अगर इन सब में इन चीज़ें, बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन इन दीज parameters. Okay, so we had this formula wherein density was saying that rho is what? Mass upon volume. Do you remember this? Okay, so इसको हमने और सिंप्लीफाई किया था। वी गॉट, अच्छा ये तो सिर्फ एक का है, मेरे पास बहुत सारे पार्टिकल्स, so how will I find? Okay, so it was something like that. If I multiply number of particles, that is n, number of particles, that is n, if I multiply this with molar mass of that metallic particle upon वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रोस नंबर, है ना। कितने पार्टिकल्स हमें पता नहीं, तो एवोगैड्रोस नंबर था, है कि नहीं? ये फॉर्मूला हमें पहले ही पता था। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो इट विल गिव मी समथिंग लाइक दिस। तो ये था मेरा मास। मास फाइंड करना है तो मेरे पास कितने पार्टिकल, उतना मास फाइंड करना पड़ेगा। वॉल्यूम फाइंड करना है तो एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? जब मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब अगर एक मोल है सपोज, तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? एवोगैड्रोस नंबर, है कि नहीं? तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता है, दैट इज डेंसिटी, दैट इज रो, इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल n मल्टीप्लाई बाय मोलार मास कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम वाज a क्यूब एंड भाई हमारा एवोगैड्रोस नंबर दैट इज Na। दिस वाज द फॉर्मूला विच वी गॉट, है ना। अगर इसको इफ आई रीअरेंज दिस समथिंग लाइक दिस, कैपिटल M दैट इज मोलार मास विल बी इक्वल टू डेंसिटी a cube एवोगैड्रोस नंबर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, आई गेट दिस समथिंग लाइक दिस। ये फॉर्मूला मिलेगा जहाँ पे n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ particles, right, where a is what, n is what, number of particles, a cube is what, volume of a unit cell, ठीक है। a is what, volume of unit cell, उस unit cell का क्या है? वॉल्यूम है कि नहीं? So we got this relationship between molar mass, density, volume and number of particles. Now let's say if somebody has given me and somebody have asked me कि भाई मुझे बताओ number of particles in x ग्राम। अगर एक मेटल दिया है, उसका क्रिस्टल दिया है, मुझे बोला वो x ग्राम है, तो कैसे फाइंड करोगे? एंड सिंस वी ऑल नो दैट मोलार मास दैट इज m, है ना, सिंस वी नो दैट मोलार मास दैट इज m, राइट। उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर, Na पार्टिकल्स होते हैं उसमें, है कि नहीं? तो अगर मेरे पास एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? Na पार्टिकल्स है, तो मेरे x ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? कितने पार्टिकल्स होंगे? दिस वी नीड टू फाइंड। सो इफ आई रीअरेंज एंड क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, व्हाट विल आई गेट? क्या मिलेगा मुझे? इफ आई मल्टीप्लाई दिस तो मुझे मिल जाएगा भाई, अगर मैं x ग्राम मेटल लेता हूँ तो x ग्राम मेटल में मुझे कितना पैकेट्स मिलेंगे? ये इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, राइट, ये मोल नीचे आ जाएगा। सो दिस विल बी एवोगैड्रो नंबर, x उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलार मास। इतने पार्टिकल्स मुझे मिलेंगे। क्या किया मैंने? मोलार मास, मोलार मास में कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स होते हैं,
तो एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? आई जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये यहाँ गया, ये एक्स ग्राम यहाँ गया। तो एक्स ग्राम पार्टिकल्स में कितने होंगे मेरे पास पार्टिकल्स? एक्स एन ए, एक्स ग्राम पार्टिकल में कितने होंगे? एक्स एन ए अपॉन एम। समझ में आ रहा है? तो अगर इस क्वेश्चन मार्क को x ले लेता हूँ या फिर x1 ले लेता हूँ, आई गेट द सेम थिंग, राइट। सो सपोज मैंने इसको x लिया है तो मेरा क्या हो रहा है? x ग्राम पार्टिकल्स में, x ग्राम पार्टिकल्स, सो यू राइट इट अगेन। सो इफ आई एम गेटिंग m मोलार मास में कितने पार्टिकल्स है? Na पार्टिकल्स है। तो मेरे x ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? x पार्टिकल्स होंगे। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, सो x ग्राम में कितने पार्टिकल्स हो गए? x यहीं रह गया, राइट। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये जो x है इसके दिस विल कम हियर, सो x अपॉन m, ये n इधर आएगा, राइट, इधर n आ जाएगा, इसको इधर भेज दूंगा तो इधर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट द फॉर्मूला। x ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे? x इंटू एन ए अपॉन m, इतने पार्टिकल्स मुझे मिलेंगे, राइट। दिस विल बी माई पार्टिकल्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ओके, सो अभी हमने यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड किया था। सी फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ m। हमने एक फॉर्मूला निकाला था जहाँ पे हमें m का वैल्यू मिला था, दैट वाज रो a क्यूब na अपॉन n, राइट। लेट अस सब्स्टिट्यूट दैट फॉर्मूला हियर instead of m, we will substitute that formula here. What will I get? I'll get that, so number of particles in how many gram? x gram. This will give me what? अभी ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है? x na अपॉन m, कैपिटल m के बदले हम वो फॉर्मूला लिखेंगे। दैट फॉर्मूला was instead of m, what we will write? It was rho a cube na upon small n, that was number of particle, right। na will get cancel हो गया, बचा क्या ऊपर? अच्छा ये यहाँ पर नीचे है, सो ये देखो 1/1 से a अपॉन b अपॉन c है, तो ये कैसा होगा? a अपॉन b अपॉन c का मतलब क्या होता है? a इंटू c अपॉन b, दिस विल बी x इंटू n अपॉन रो a क्यूब, इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? तो अभी हमें अगर फाइंड करना है नंबर ऑफ पार्टिकल इन एक्स ग्राम, तो फॉर्मूला क्या मिल गया? x इंटू एन अपॉन रो ए क्यूब, राइट। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये मिल गया, ये तो पार्टिकल्स मिल गए। समझ में आ रहा है ना पार्टिकल्स कैसे मिले? सिंपल है, एक्स ग्राम पार्टिकल में क्या होगा? एक्स एन ए अपॉन मोलार मास का फॉर्मूला पीछे हमने निकाला था ना। लेट्स से आई नीड टू फाइंड यूनिट सेल। अगर मुझे फाइंड करना है कि भाई कितने यूनिट सेल प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर एक्स ग्राम मेटल में, सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन एक्स ग्राम मेटल में कितने यूनिट सेल है? यूनिट सेल कैसे फाइंड करेंगे भाई? अपने को पता है, वी हैव डिस्कस दैट जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो मुझे बताते हैं कि कितना यूनिट, कौन सा यूनिट सेल बनेगा। अगर सिंपल यूनिट सेल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स है? 1, तो 1 पार्टिकल विल बी 1 यूनिट सेल, राइट। सो एफसीसी में बात करें तो एफसीसी में कितने बीसीसी की बात करें तो बीसीसी में एक कॉर्नर में 1/8 और बीच में एक, दैट इज टोटल पार्टिकल वॉज 2। 2 पार्टिकल है तो कौन सा यूनिट सेल बना? बीसीसी, लेकिन एक ही यूनिट सेल बना। सो गाइस, व्हाट इट इज सेइंग दैट since we know that n particles gives me 1 यूनिट सेल। n पार्टिकल क्या देता है मुझे? 1 यूनिट सेल देता है। अब वो कौन सा यूनिट सेल देता है वो डिपेंड करता है कितने पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल्स ही है ना, वो सारे मिला के 1 यूनिट सेल देते हैं। तो n पार्टिकल्स मुझे 1 यूनिट सेल देगा, है कि नहीं? n पार्टिकल मुझे 1 यूनिट सेल देगा। सो अगर मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल्स कितने मिले? नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्स एन रो ए क्यूब, अगर ये है एक्स एन रो ए क्यूब पार्टिकल है तो मुझे कितना यूनिट सेल मिलेगा? अगर इतने पार्टिकल्स है तो मुझे कितना यूनिट सेल मिलेगा? तो सिंपली भाई n पार्टिकल में 1 मिल रहा है तो इतने में कितना मिलेगा? सो आई डिवाइड दिस बाय n, आई डिवाइड दिस नंबर बाय n, सिंपल है ना। आई डिवाइड दिस नंबर बाय n, so it will become x raised to n, xn रो a क्यूब
डिवाइड बाय 1 by n डिवाइड बाय 1 by n, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 by n। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो अगर मेरे पास n पार्टिकल्स है तो मेरे को एक यूनिट सेल मिल रहा है। अगर इतने पार्टिकल्स है तो कितना यूनिट सेल मिलेगा? सिंपल है भाई, क्या करेंगे, इसको हम n पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे, इसको n पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो मुझे ये मिल जाएगा, है कि नहीं? सो अगर मैं बात करूँ सिंपल, सो दिस n विल गेट कैंसल विथ n, तो टोटल बचेगा क्या मेरे पास? बचेगा मेरे पास सिर्फ x अपॉन रो ए क्यूब, राइट? तो मेरे पास x ग्राम मेटल में मुझे कितने यूनिट सेल मिलेंगे? x रो ए क्यूब, इतने ही यूनिट सेल मिलेंगे। समझ में आ रहा है? सो अगर मेरा यूनिट सेल का वॉल्यूम v है, if my volume of the unit cell is v, number of unit cell in a volume v, अगर मेरे पास समझो एक वॉल्यूम दे दिया और पूछा कि इसमें कितने यूनिट सेल है, अगर मेरे पास एक वॉल्यूम दे दिया और पूछा कितने यूनिट सेल है, let's say they have given me they have asked me number of unit cells, if they have given me volume v में कितने यूनिट सेल आएंगे, तो हमें पता है कि भाई एक यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज व्हाट? वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज ए क्यूब। तो अगर बस v वॉल्यूम है तो कितना यूनिट सेल होगा, राइट? सिंपल है भाई, तो बड़ा वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटा वॉल्यूम, तो मुझे मिल जाएगा कि कितने यूनिट सेल्स है इसमें। बड़े वाले वॉल्यूम में से अगर मैं छोटा वॉल्यूम डिवाइड कर दूंगा तो जो आएगा वो मेरे इतने यूनिट सेल्स है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट फार्मूला विच वी हैव हियर इज वी फाउंड आउट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, वी फाउंड आउट यूनिट सेल्स कैसे फाइंड करना है, और अगर वॉल्यूम दिया है तो कैसे यूनिट सेल मिलेगा मुझे। ओके, सो अगेन सी जस्ट लेट्स हैव अ स्मॉल लुक ऑन इट। सो गाइस, दिस इज हाउ वी हैव फाउंड कि मोलार मास और बाकी सारी चीज़ों का रिलेशनशिप क्या है, राइट? डेंसिटी, वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोलार मास के साथ क्या रिलेशनशिप है, वी हैव फाउंड इट हियर। ओके, देन आफ्टर दैट number of particles in x gram of metals, how to find? So just we know that molar mass m में कितने particles होते हैं, na particles होते हैं, तो x gram में कितने particles होंगे? If we rearrange it, this is what we get। x gram particle में कितने x gram metal में कितने particles होंगे? That will be x na upon capital M particles, इतने particles मिलेंगे। Now we know this is what these particles we are getting, right? अच्छा, तो अगर मुझे पता करना है कि कितने यूनिट सेल मिलेंगे, राइट? तो अगर मैंने इसके पहले क्या किया, कैपिटल एम के बदले बाकी चीज़ें सब्स्टिट्यूट कर दी, इंस्टेड ऑफ एम आई हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ एम, एंड आफ्टर दैट दिस इज व्हाट फाइनल आंसर आई एम गेटिंग। नंबर ऑफ पार्टिकल इज व्हाट? एक्स एन अपॉन रो ए क्यूब। व्हाट इफ आई नीड टू फाइंड यूनिट सेल? सो यूनिट सेल फाइंड करना है तो वी नो दैट एन पार्टिकल्स मतलब एक यूनिट सेल, जितने भी पार्टिकल्स होंगे उतना यूनिट सेल होगा, है कि नहीं? उतने का यूनिट सेल। एक पार्टिकल मतलब क्या? अभी लेट्स से n पार्टिकल है, n पार्टिकल समझो, n के बदले हम लेते हैं 1 पार्टिकल्स। वी नो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 1, तो एक यूनिट सेल बनाता है। अगर मैं BCC की बात करूँ, टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं? 2, वो भी तो एक ही यूनिट सेल बनाता है ना। पार्टिकल्स भले से 2 है लेकिन यूनिट सेल कितना बन रहा है? एक ही बन रहा है। सो दिस इज दैट n पार्टिकल्स विल गिव मी 1 यूनिट सेल, राइट? तो एक्स एन रो ए क्यू पार्टिकल कितने पार्टिकल्स कितना यूनिट सेल देगा? सो वी विल डिवाइड दिस बाय n particles, we will divide this number by n particles, so we have divided this number by n particles, and this is why this is what we got that x ग्राम मेटल में कितने पार्टिकल्स होंगे? x रो ए क्यूब, x बाई रो ए क्यूब, इतने पार्टिकल्स होंगे। एंड नाउ इवन इफ सम अगर कुछ केस ऐसा आता है wherein they have given me the volume कैपिटल V और बोला है कि अब मेरा यूनिट सेल फाइंड करके दिखाओ, सो वी नो दैट अच्छा इतना वॉल्यूम दिया हुआ है, हमारा एक यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब। सो कैपिटल बिग वॉल्यूम डिवाइडेड बाय स्मॉल वॉल्यूम एंड आई विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, राइट? ओके, नाउ लेट अस मूव टू दी प्रॉब्लम्स। आज हम 6 प्रॉब्लम्स देखने वाले हैं। ओके, विल सी 6 प्रॉब्लम्स।
एक एक प्रॉब्लम्स अच्छे से रीड करके मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद हम उसको सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव. Let me just read out the question and then we'll solve it. So what question says here: a compound made up of elements C and D crystallizes in FCC structure. So this compound has two elements C and D, and they are crystallizing in which structure? FCC structure. Fine, okay. And what is the next step? What they have given: atoms of C are present at the corners of the cube. मतलब C जो है भाई वो corners पे present है, 8 कॉर्नर में, ठीक है. एटम्स ऑफ डी आर एट सेंटर्स ऑफ फेसेस, और डी जो एटम है वो कहाँ पर है? फेसेस पे, फेसेस के सेंटर पे. ओके, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड? नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट फॉर्मूला विल बी देयर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. ओके, ठीक है भाई, समझ में आ गया. चलो सोल्यूशन लिखते हैं. सोल्यूशन क्या है? सो वी ऑल नो दैट विल फॉलो सम स्टेप्स ऑन इट. ओके, सो सबसे पहला स्टेप है कि भाई हमें क्या बोला है? सी, पहले सी एटम की बात करते हैं. ओके, एटम सी कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में. तो बोले सी एटम्स आर प्रेजेंट इन 8 कॉर्नर्स. ओके, मतलब अगर कॉर्नर एटम की बात करें तो भाई हर एक कॉर्नर एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है एक यूनिट सेल में? 1/8 एटम है कि नहीं? कॉर्नर एटम में कितने कंट्रीब्यूशन होता है? कॉर्नर एटम का एक यूनिट सेल में कितना? 1/8 एटम कंट्रीब्यूशन. ओके, तो देयरफॉर सी जो है एटम, वो भाई यूनिट सेल में क्या कर रहा है? वो उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 है, और वो कहाँ पर है? कॉर्नर में. तो हमें पता है कि एक यूनिट सेल में कॉर्नर में क्या होता है? ठीक है, FCC की अगर बात करूँ तो कॉर्नर में कितने एटम्स होते हैं? 8, और ईच एटम इज कंट्रीब्यूटिंग 1/8. देयरफॉर सी का कंट्रीब्यूशन क्या है? 8 × 1/8, दैट इज टोटल 1 एटम. तो भाई इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में सी कितना है? 1. सी का एटम कितना है? 1 एटम है कि नहीं? क्योंकि वही कंट्रीब्यूशन कहाँ कर रहा है? कॉर्नर में कंट्रीब्यूट कर रहा है. मतलब हर एक एटम इस सी का कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 1/8. ओके, कॉर्नर में कितने टोटल एटम होते हैं? 8 × 1/8, आई गेट 1 एटम. फाइन. ओके, दिस इज व्हाट वी गॉट अबाउट सी. चलो अब डी की बात करते हैं दोस्त. डी, what they are saying, D atoms are present at center of 6 spaces, है कि नहीं? D atom कहाँ present है? सेंटर में present है. and we know that how many faces are there? 6 faces. so D atom कहाँ पर present है? सेंटर में. किसके? 6 faces के. तो अगर मैं बात करूँ फेस की, तो फेस पे जो एटम्स होते हैं वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? हाफ, है कि नहीं? कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? हाफ. अच्छा, कितने फेसेस है? 6 फेसेस है. हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस. और एक फेस कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? हाफ. तो हाफ इंटू 6 करूँगा तो कितना मिल गया? 3. सो भाई मेरा जो डी एटम है वो कितना हो गया? 3 एटम्स. तो मतलब मेरा जो क्रिस्टल बनेगा वो किससे बना है? एक कार्बन एटम से और एक सी एटम से और 3 डी एटम से. तो भाई मेरा अगर मैं बात करूँ कि फॉर्मूला क्या होगा इस पर्टिकुलर कंपाउंड का, तो मुझे पता है कि भाई सी कितना एटम है? 1, और डी कितना एटम है? 3. तो मेरा जो फॉर्मूला बनेगा फॉर दिस कंपाउंड, formula of this compound would be what? C and D 3, because एक एटम C का 3 एटम D का. my formula would be CD3. hope this is very clear now. सिंपल है भाई. कॉर्नर C कितना था? C कहाँ पर था प्रेजेंट? कॉर्नर में प्रेजेंट था. और D कहाँ पे था? फेस पे. तो C कॉर्नर पे है तो उसका कितना होगा भाई? C कॉर्नर पे है तो कॉर्नर कितने हैं? 8 कॉर्नर है, और 8 कॉर्नर पे 8 एटम होने चाहिए. बट एक यूनिट सेल को बनाने के लिए भाई हर एक एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? ओनली 1/8. एंड 8 कॉर्नर इंटू 1/8 आई गेट टोटल एटम 1, है कि नहीं? कॉर्नर के अगर सारे एटम मिलाऊँ तो मुझे एक ही एटम मिलता है. बहुत डिस्कस किया हमने. और डी क्या बोल रहा है? फेस पे. अगर कोई भी एटम फेस पे होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन हाफ ही होगा. फेस कितना होता है? 6. तो हाफ इंटू 6, दैट इज़ व्हाट आई गेट 3. तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? CD3. एक एटम C का, 3 एटम D का. So next question says that the unit cell of metallic silver is FCC. Okay, बता दिया ये यूनिट सेल कौन सा है? FCC. Okay, if radius of Ag atom is 144.4 पिकोमीटर, रेडियस दिया हुआ है Ag एटम का, सिल्वर एटम का रेडियस
144.4 picometer. Okay, calculate. What we need to calculate here is first edge length of unit cell, that is A. Okay, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम, एजी एटम को वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है. परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है, एजी एटम ने कितना ऑक्यूपाई किया है. ओके, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेसेस. ओके, परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस मतलब परसेंटेज ऑफ वॉइड भी फाइंड करना है हमें. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं भाई, सिंपल है. क्वेश्चन समझ गया आप लोगों को, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. इट इज़ क्वाइट सिंपल, ठीक है. इसके लिए हमें एक रिलेशनशिप याद करना पड़ेगा पहले. अगर हमें ए फाइंड करना है, इफ वी नीड टू फाइंड ए, इफ यू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर फॉर एफसीसी. सोल्यूशन लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ. ओके, इफ यू रिमेंबर द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर, इफ वी टॉक अबाउट एफसीसी, याद है. सो वी सॉ इन लास्ट लेक्चर फॉर एफसीसी यूनिट सेल, आर का रिलेशन क्या था, आर इज इक्वल टू a upon 2√2. रिमेंबर, इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, दिस विल बी लाइक a 1 इंटू a अपॉन 2√2. √2 का वैल्यू क्या होता है, 1.414 ये होता है. ओके, सो इफ वी मल्टीप्लाई दिस 1 कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 4 जा 8, 2.828, दैट इज 1/283. अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूँ, इफ आई सॉल्व दिस फर्दर, what will I get if I divide 1 by 282? I'll get that 0.3535a, मतलब 0.35348 समथिंग मिलता है. सो इफ आई राउंड इट ऑफ, आई विल गेट 0.3535a, राइट. सो अब अगर मैं बात करूँ रेडियस r की, सो फॉर FCC द रेडियस विच आई हैव इज 0.3535 ऑफ ए, मतलब जो भी रेडियस होगा मेरा एफसीसी में, जो भी पार्टिकल होगा उसका रेडियस क्या होगा, 3535 इंटू ए इंटू एच लेंथ. रेडियस क्या होगा, 0.3535 इंटू ए. ओके, अच्छा यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी ये लोग ने क्या दे दिया, रेडियस दे दिया हुआ है, राइट. इफ़ आई हैव अ रेडियस है और मुझे पता है कि रेडियस क्या होता है 0.3535 ऑफ ए, तो मैं ए फाइंड कर सकता हूँ. सो व्हाट आई कैन राइट हियर इज, देयरफॉर ए क्या हो जाएगा, आर अपॉन 0.3535, राइट. ओके, आई ऑलरेडी हैव अ आर, बट आर मुझे किस में दिया हुआ है, डू यू रिमेंबर, ये मुझे 1.44 रेडियस क्या दिया हुआ है, 1.44.4 पिकोमीटर में. भाई पिकोमीटर में सॉल्व नहीं करता मैं, पिकोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में या फिर सेंटीमीटर में. तो लेट अस जस्ट कन्वर्ट दिस इनटू मीटर फर्स्ट. तो पिकोमीटर मतलब क्या होता है, -10⁻12 144.4 इंटू 10⁻12 मीटर, है कि नहीं दोस्त. इसको मेरे को सिंपल अगर सेंटीमीटर में करना है तो मैं क्या करूँगा, 2 और कम हो जाएगा, तो 144.4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट आई हैव गॉट द रेडियस, है कि नहीं. सो नाउ वी हैव फॉर्मूला, वी हैव रेडियस, सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो ए इज व्हाट, रेडियस कितना मिला है भाई अपने को, 144.4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर, तो 144.4 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.3535, right. So if we divide 0.3535, if we divide 144.4 with 0.3535, the value which I will get here is 4085. Okay, that is 40.85 into 10⁻10 सेंटीमीटर. ओके, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इट 4.08, सॉरी 10⁻9 सेंटीमीटर. इफ आई सिंप्लीफाई इट मोर, आई गेट 4.085 into 10⁻8 सेंटीमीटर. दिस इज व्हाट आई गॉट दी वैल्यू फॉर ए. अब मुझे ए का वैल्यू मिल गया. आई हैव गॉट दी एज लेंथ, तो एज लेंथ वाज 4.085 into 10⁻8 सेंटीमीटर. ओके, नेक्स्ट क्या फाइंड करने बोला मुझे, वॉल्यूम ऑफ एजी एटम. आई नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एजी एटम. चलो भाई, ये तो और सिंपल है. सेकेंड वाला क्या है,
वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। तो एजी एटम का वॉल्यूम फाइंड करना है मुझे। सो सिंपल है, वी नो दैट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, वी नो आर का वैल्यू, we already know the value of r, so let us substitute this here. So 4/3 into 3.142 into what is the value for r, we have just found out, that was 144.4 into 10 raised to minus 10 centimeter, the whole cube. This is what we got, है कि नहीं? And when you will simplify this, the answer which you will get is 1.261 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. This is what is the volume. ये मिल गया मुझे वॉल्यूम। ओके फाइन। नाउ नेक्स्ट इज सी क्या क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट इज ऑक्यूपाइड, मतलब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है ना। तो ठीक है भाई, पता कर लेते हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब परसेंटेज फाइंड करना है मुझे पैकिंग की, तो मुझे पता होना चाहिए कि देयर इज हाउ मेनी पार्टिकल आर देयर इन दिस पर्टिकुलर यूनिट सेल। एक एफसीसी यूनिट सेल की बात करूँ तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं? वी नो एफसीसी में कितने पार्टिकल्स होते हैं टोटल? एफसीसी अगर मैं फेस सेंटर की बात करूँ तो भाई फेस पे 3 होता है, कॉर्नर में का मिला के 1, तो टोटल एटम्स कितने होते हैं एफसीसी में? इन एफसीसी देयर आर हाउ मेनी एटम्स? 4 एजी एटम। अभी एजी एटम की बात करें ना, तो एफसीसी यूनिट सेल में हाउ मेनी एटम्स आते हैं? 4 एजी एटम्स। तो अभी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 4 एजी एटम। अभी अपन ने इसके पहले वी जस्ट फाउंड आउट वॉल्यूम ऑफ 1 एजी एटम। वॉल्यूम ऑफ 1 AG atom. What was that? Volume of 1 AG atom was 1.261 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. This was the volume of 1 AG atom. Therefore, volume of 4 AG atom will be what? Simply we'll multiply with this number with 4 into 1.26 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. Okay, if we multiply this, the value which I'll get here is 5.044 into 10 raised to minus 23 centimeter cube. तो भाई टोटल वॉल्यूम मिल गया मुझे। अच्छा, ये तो मुझे मिल गया मेरे एजी एटम का वॉल्यूम। दिस इज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एजी एटम इन द यूनिट सेल। ओके, अब मुझे पता करना है कि परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एजी एटम इन अ यूनिट सेल, राइट? तो इसलिए मुझे आई जस्ट गॉट द वॉल्यूम ऑफ एजी एटम। अब मुझे ये भी पता होना चाहिए ना कि मेरे यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, राइट? सो वी नो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज व्हाट? ए क्यूब। ओके, वी हैड फाउंड आउट कि भाई ए का वैल्यू मिला था मुझे, अभी पीछे हमने फाइंड किया, इट वाज लाइक 4.085 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर, राइट? सो इफ ये तो ए का वैल्यू था, ए क्यूब लिख दिया मैंने, राइट? सो 4.085 into 10 raised to minus 8 का वॉल्यूम निकल जाएगा, मल्टीप्लाई करूँगा क्यूब निकाल के तो 6.817 आता है, दैट इज 10 raised minus 23 cm cube. So this is the total volume of my unit cell and this is the volume of my AG particle. तो इतना AG particle का वॉल्यूम इतना है और टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इतना है। तो अब मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरी इस पर्टिकुलर यूनिट सेल में AG का कंट्रीब्यूशन कितना है, AG पार्टिकल कैसे पैक्ड है, राइट? सो वी नो दैट परसेंट ऑफ वॉल्यूम occupied by AG atom will be equal to volume occupied by atoms in unit cell divided by volume of unit cell multiply by 100. This was the formula we did last time. So this will be like, okay, volume occupied by कितना मिला वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, दैट वाज 5.044 into 10 raised to minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अपॉन दूसरा क्या था, वॉल्यूम ऑफ माय यूनिट सेल, इट वाज 6.817 into 10 raised to minus 23 cm cube।
ये कट गया इंटू 100, 23 कट गया. Okay, if I divide this, I'll get 74%. I'll get 74%. तो ये मेरा हो गया पैकिंग एफिशिएंसी. मतलब मेरे पार्टिकल्स ने इतना पर्टिकुलर एक यूनिट सेल में इतना यूनिट सेल का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है. कितना? 74. टोटल वॉल्यूम समझो 100% है, तो उसमें से मेरे पार्टिकल ने कितना ऑक्यूपाई किया? सिल्वर ने 74%. तो एम्प्टी स्पेस कितना बच गया, मतलब वॉइड कितना बच गया? If I have to calculate, see तो परसेंट of empty space. This was the last question, right? क्या आएगा? टोटल कितना वॉल्यूम है? 100. उसमें से सिल्वर ने कितना ऑक्यूपाई किया? 74. बचा कितना? 26%. तो भाई ये इस पर्टिकुलर क्रिस्टल में जो वॉइड है वो कितना है? 26%. सो धीरे धीरे हम लोगों ने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पूछा था हमें, राइट? ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So here is your third question, and third question says that a compound is formed by two elements A and B. The atoms of element B forms CCP structure. ठीक है, B के जो elements है वो कौन सा structure बनाते हैं? CCP. The atoms of A occupy 1/3 of tetrahedral void. मतलब A atom क्या करता है? Occupy करता है 1/3. मतलब tetrahedral void जो है बी ने जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनाया है उसके ऊपर जब ए स्टैक करेंगे हम, तो वो कितना वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा? टोटल वॉइड के 1/3 को. ठीक है भाई, चलो ठीक है, आप समझते हैं. ओके, इवन इफ यू रिमेंबर दैट वी हैड डिस्कस दैट नंबर टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, याद है ना? सो हमने बात की थी कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसका 2 गुना बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड, और जितने भी नंबर पार्टिकल्स होंगे उतना ही बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, राइट? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट टेट्राहेड्रल. ठीक है, तो क्या बात कर रहा है? सो वो लोग ने क्या बोला? दी कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी. दी एटम ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर. ओके, दी एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई दी 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. ओके, व्हाट इज दी फॉर्मूला फॉर इट? सो वी नो दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स विच स्ट्रक्चर? सीसीपी, है कि नहीं? और सीसीपी बात करें तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड जनरेटेड इज व्हाट? इट इज ट्वाइस ऑफ बी एटम, है कि नहीं? अभी हमने बात की जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं वो क्या होते हैं? वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ट्वाइस होते हैं. सो अगर मैं बात करूँ बी पार्टिकल की, अभी हम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल बी, तो इससे जो वॉइड बनेंगे विच इज टेट्राहेड्रल वॉइड, वो क्या बनेंगे? वो 2 गुने बनेंगे. अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल कितने बी के जो भी पार्टिकल होंगे, बी के जितने भी पार्टिकल्स होंगे उससे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, तो उसको मैं बोलूँगा 2b. तो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो क्या होगा? 2b. सो टेट्राहेड्रल वॉइड्स विल बी 2b, राइट? है कि नहीं? तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2b. सी, अगर मेरे पार्टिकल्स है b, मेरे कितने, देन एटम, एक जो एटम है मेरा, ठीक है, एलिमेंट बी का, तो कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है? सीसीपी. तो मेरा नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होंगे? जितना भी पार्टिकल मेरा बी होगा उसका ट्वाइस होगा. तो लेट्स से मेरा पार्टिकल बी पार्टिकल एन है, तो मेरा जो वॉइड होगा वो कितना होगा? 2n पार्ट, है कि नहीं? सो इफ माई पार्टिकल इज बी, माई टेट्राहेड्रल वॉइड विल बी 2b. ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया. दूसरा केस क्या बोलता है भाई? द एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. मतलब ए एटम, द एटम्स ऑफ ए ऑक्यूपाई व्हाट? 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है भाई? 2b. तो ए कितना ऑक्यूपाई कर रहा है? 1/3. दैट मीन्स 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, दैट इज 1/3 ऑफ 2b. क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बना है? 2b बना है ना भाई. टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बना है? 2b, है कि नहीं? तो ये मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड बना है. सॉरी, ये मेरा क्या बोलते हैं, एटम ऑक्यूपाई किया है. ए एटम ने इतना प्लेस ऑक्यूपाई किया है, और ये मेरा क्या है? वॉइड है. सो इफ आई टेक द रेशियो ऑफ ए एंड बी, इफ आई हैव टू टेक द रेशियो ऑफ ए एंड बी, क्योंकि मुझे क्या बताना है? फॉर्मूला बताना है ना. यहाँ पे वी हैव टू जनरेट द फॉर्मूला. तो
अगर अब मुझे पता चल गया कि ए कितना है और बी कितना है, तब मुझे फॉर्मूला मिल जाएगा. सो आई हैव टू टेक द रेशियो. इफ आई टेक द रेशियो ऑफ ए एंड बी एटम्स, ओके, रेशियो ऑफ ए एंड बी एटम वुड बी व्हाट? सो ए क्या है? 2/3 टाइम बी. उसका रेशियो किससे निकालना है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इन बी, दैट इज 1b, है कि नहीं? ये मेरा ए पार्टिकल है और ये मेरा बी पार्टिकल है. भाई समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? देखो यहाँ पे क्या हो गया, एटम्स ऑफ ए, इतने एटम्स है मेरे पास ए के, समझ रहा है? 1/3 ऑफ वॉइड, मेरा एटम कितना होगा? 1/3 ऑफ वॉइड. एटम्स ऑफ ए विल बी 1/3 ऑफ वॉइड. अच्छा वॉइड कितना है? 2b, तो एटम कितना होगा? 2b/3. एटम ए कितना है मेरे पास? 2b/3. एटम बी कितना है? अगर मैंने एटम बी को 1 लिया है तो मेरा वॉइड कितना था? 2b. तो मेरा एटम ए क्या बोल रहा है? एटम ए इज ऑक्यूपाइंग 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. सो वी नो दैट टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2b. सो माय एटम विल बी 1/3 ऑफ 2b, दैट इज 2b/3. तो ए एटम कितना हो गया? 2/3 2/3 इंटू बी. और मेरा बी पार्टिकल कितना है? वो तो बी ही था. सो इफ आई टेक अ रेशियो, दैट मीन्स आई डिवाइड दिस 2/3b divide by b, that is 1/b, right? b will get cancelled. What I got here is 2/3 2/3. This says that अगर 2/3 मिल गया, दिस इज दैट अगर मेरा पार्टिकल ए 2 है तो मेरे पास बी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए. एंड तो रेशियो क्या मिल गया? 2:3. सो द फॉर्मूला विल बी, इफ माई ए पार्टिकल ए इज 2, तो उसके लिए पार्टिकल बी कितने चाहिए? 3. तो फॉर्मूला क्या बन गया? A2B3. राइट गाइस, व्हाट इट इज सेइंग दैट, रिमेंबर अगेन, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है. अगर मेरे पास पार्टिकल बी है, ए, अगर मेरा एक कंपाउंड है जो ए और बी पार्टिकल से बना है, फ्रॉम दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट बी फॉर्म्स विच स्ट्रक्चर? CCP स्ट्रक्चर. ओके, और एटम ऑफ ए ऑक्यूपाई द टेट्राहेड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. मुझे पहले पता करना पड़ेगा मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है. ओके ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करता हूँ पार्टिकल बी को, ठीक है, पार्टिकल बी अगर मेरे पास कितना है? बी पार्टिकल है, ठीक है. अगर मेरे पास जो दूसरा एलिमेंट है बी, वो कितना है? बी है. तो उसका वॉइड कितना बनेगा? 2b. वी ऑल नो दैट टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स का ट्वाइस बनता है. अगर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? b है, तो मेरा वॉइड कितना बनेगा? 2b. फाइन. ओके, इंस्टेड ऑफ b यू कैन टेक n ऑल्सो. लेट मी टेक n. मेरे पास n पार्टिकल्स है, तो मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनेगा? 2n बनेगा, है ना? 2n है ना? 2n बनेगा, राइट. ओके, तो मेरा जो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना हो गया? समझो 2n हो गया. ओके, सिंपल, और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट सेकंड स्टेप इज सेइंग, सेकंड कंडीशन क्या है? द एटम ऑफ ए ऑक्यूपाइज व्हाट? 1/3 ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड. मतलब मेरा जो ए है वो कितना ऑक्यूपाई करेगा? 1/3 करेगा टेट्राहेड्रल. तो मेरे पास उतने एटम हो जाएंगे. तो 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है. तो अगर मैं बात करूँ 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यहाँ पे क्या लिया मैंने? 2n लिया है. तो भाई ये ऐसा हो गया, तो मेरा वैल्यू कितना है? 2n/3 मिलेगा, राइट. तो अगर मैं दोनों का रेशियो लूँ, अगर मैं दोनों का क्या लूँ? रेशियो लूँ, बिकॉज मुझे पता करना है कि मेरा फॉर्मूला क्या है. तो ए और बी का जब मैं रेशियो निकालता हूँ, तो अगर मैं नया वाला रेशियो लूँ, 2/3n मिल रहा है इज टू व्हाट? नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ बी कितने थे? n थे, राइट. तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? 2/3:1 आएगा. दैट मीन्स 2:3. तो अगर मेरा एक पार्टिकल 2 है तो दूसरा पार्टिकल कितना होगा? 3. तो अब वापस फॉर्मूला क्या बन गया? A2B3. सिंपल है. ओके, so guys, let's solve the next question. Okay, moving to the next question. So the question says that, now this question is very important and ये इसका फॉर्मूला हमने आज ही देखा है. Okay, so let me read the question. Niobium forms BCC structure. Niobium forms BCC structure. The density of niobium is 8.55 gram per cm cube. Okay, they have given me density. चलो मिल गया. And the length of unit cell edge is 330.6 picometer. Okay, तो edge भी दे दिया, that is 330.6 picometer. Okay, now question क्या पूछा है?
how many atoms and unit cells are present in 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम. ओके, सो ये आज हमने ही देखा था. अगर मैं x ग्राम क्रिस्टल देता हूँ तो उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है और कितने यूनिट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो वाला है कंसेप्ट, राइट. तो यहाँ पे फाइंड करना, तो उन्होंने x ग्राम के बदले मुझे 0.5 ग्राम दे दिया है. फाइन, तो चलो सॉल्व करते हैं. आज ही हमने इसका फॉर्मूला देखा है, सोल्यूशन. ओके, तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, राइट. उसके बाद हम आगे करेंगे. तो वी नो दैट नंबर of atoms, to find number of atoms in x ग्राम, है ना. उसका फॉर्मूला क्या था, x n रो a क्यूब, इफ यू रिमेंबर. अभी पीछे किया था, है कि नहीं. चलो ठीक है, ये फॉर्मूला हमें सॉल्व करना है, फॉर्मूला डाल के. फाइन. अच्छा, नायोबियम फॉर्म्स विच स्ट्रक्चर, इट फॉर्म्स BCC स्ट्रक्चर, है ना. तो देखो, अच्छा पहले देखते क्या क्या दिया हुआ है. ओके, हैव दे गिवन x, have they given me x? Yes, they have given me x, that is 0.5 ग्राम. चलो ठीक है. have they given me n? उसकी बात बाद में करते हैं. ओके, तो क्वेश्चन से मुझे दिख रहा है कि ओके, दे हैव गिवन मी दी डेंसिटी. ओके फाइन, डेंसिटी मिल गया. दे हैव गिवन मी a क्यूब, h दे दिया है, तो मैं वॉल्यूम फाइंड ही कर सकता हूँ. n की बात करते हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, BCC स्ट्रक्चर. सो अगर मैं BCC स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं BCC में. कॉर्नर एटम्स 8 होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन करेंगे तो टोटल एटम बनता है 1, और एक एटम सेंटर में होता है बॉडी के. तो टोटल एटम कितने होते हैं BCC में, 2 एटम. तो n तो अपने को पता ही है दोस्त. तो चलो पहले लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है. तो x दिया हुआ है कितना, 0.5 ग्राम. ओके, n we know because it is BCC, there will be what, number of particles would be 2 because it is what, BCC structure है. ओके, they have given me density कितने दिया हुआ है, 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके, even they have given me the edge length, that is A, that is 330.6 पिकोमीटर, है कि नहीं दोस्त. पिकोमीटर दिया तो हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि इसमें सेंटीमीटर में, बिकॉज यहाँ पे डेंसिटी सेंटीमीटर में दी हुई है. सो इफ आई कन्वर्ट दिस, अब हमें को पता है कि इसको सेंटीमीटर में करना है पिकोमीटर को, तो इसको पहले मीटर करेंगे तो 10⁻⁻12 पिकोमीटर मीटर हो जाएगा. उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं. सो दिस विल बी लाइक 330.6 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर. ओके, सो इवन वी हैव डेंसिटी. सो भाई सिंपल है, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो सब. सो x ग्राम, ओके सॉरी, नंबर ऑफ एटम्स, है ना. हमें नियोबियम के कितने एटम प्रेजेंट है वो भी फाइंड करना है. उसके बाद हमें पता करना है कि यूनिट सेल कितने हैं. सो नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ नायोबियम इन 0.5 ग्राम. तो फॉर्मूला क्या है दोस्त, फॉर्मूला इज x इंटू n अपॉन रो a क्यूब. सो x का वैल्यू कितना है भाई, 0.5 ग्राम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 डिवाइडेड बाय रो, that is density given is 8.55 gram per centimeter cube. Okay, into that is they have given the volume. हमें a तो पता ही है, a क्यूब क्या होगा, 3.306. So this will be 10⁻10. Sorry, this will be 10⁻10, right. इसको अगर मैं सिंप्लीफाई और करूँगा तो this will become 3.306 into 10⁻8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे मैं वही लिखूँगा 10⁻8 सेंटीमीटर वाला, 3.306 into 10⁻8 सेंटीमीटर द होल क्यूब. ओके, सो इफ यू सॉल्व दिस, 0.5 ग्राम का क्या हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8.55.
8.55 gram centimeter cube into 3.306 into 10 raised to minus 8 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स और सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, ग्राम कट जाएगा. सो क्या बचेगा 1/8.55 इंटू 3.306 का मैं अगर क्यूब निकालता हूँ तो मुझे मिलेगा वैल्यू कुछ 36.13. This is what I got into 10 raised to minus 8 will become 8 to 24, that is minus 24, right? ये मुझे मिल गया. So if I solve this, the value which I am getting here is 3.25 into 10 raised to 21. Okay, this is what I've got. So this is what the value which I have got. Now this was the number of atoms in 0.5 gram of niobium. ठीक है, अब बात करेंगे यूनिट सेल की. So let us find the unit cell in x gram. Okay, so now we have to find what number of unit cells in x gram. Okay, सो अभी हमें पता है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल एक्स ग्राम का फॉर्मूला क्या है. इफ़ यू रिमेंबर, नंबर ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या था फॉर एक्स ग्राम? इट वाज एक्स डिवाइड बाय रो ए क्यूब. याद है ना? सो अगर मैं बात करूं कि 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम में कितने यूनिट सेल है, तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? एक्स ग्राम ऑन रो ए क्यूब. एक्स वी नो दैट इट इज़ व्हाट 0.5 ग्राम. ओके, इंटू 2, ये तो मेरा x है कि नहीं? 0.5 ग्राम इंटू 2 की वजह से आ गया, पता चला कि नहीं? अपॉन रो. ओके, अपॉन रो इज व्हाट 8.55 ग्राम पर cm क्यूब इंटू व्हाट 3.306 इंटू 10 raised to minus 8 cm द होल क्यूब. Right? Okay, so if you solve this again, you will get answer that is 1.62 into 10 raised to 21. अभी पीछे हमने सॉल्व किया था, इट इज़ लाइक सेम, वैसे ही आप भी सॉल्व कर सकते हो. ओके, सो हमें भाई मिल गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. तो भाई अगर मैं बात करूँ 0.5 ग्राम ऑफ नायोबियम में कितने यूनिट सेल है? दैट इज़ 1.62 into 10 raised to 21 यूनिट सेल्स. एंड कितने पार्टिकल्स है? दैट इज 3.25 into 10 raised to 21 particles. So guys, now talking about the next sum, which is the last sum for this day. Last but not the least, this is very good, actually very good sum, one of my favorite. Okay, if I read the question for you, question says that a compound forms HCP structure. मतलब ये जो compound बन रहा है कौन सा structure है? HCP, hexagonal close pack. Okay, what is the number of octahedral void, tetrahedral void? मतलब अब मुझे क्या पूछा है? voids के बारे में पूछा है कि कितने tetrahedral voids बनेंगे, कितने octahedral voids बनेंगे और total number of voids कितने होंगे किस में? If I am getting a compound which is 0.4 mole. समझ में आ रहा है? कितने मोल कंपाउंड है? 0.4 मोल. ओके, ठीक है दोस्त. चलो, अब मुझे अगर वॉइड्स पता करने हैं तो आई नीड टू नो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं. सो अब मुझे बताओ मोल और पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रिलेशनशिप है? मोल्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या रिलेशनशिप है? सो इफ यू रिमेंबर दैट, वी नो दैट नंबर ऑफ एटम्स इन सम मोल विल बी व्हाट? दैट मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इन कहाँ पे फाइंड करना है? कितने मोल में? 0.4 मोल में फाइंड करना है. तो क्या होगा? 0.4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, दैट इज Na, राइट? दैट विल गिव मी 0.4 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर कितना था? 6.0
2 into 10 raised to 23. So if I solve this, हाँ ये मुझे मिल जाएगा 2.4098 into 10 raised to 23. Okay, so this is what is the number of atom which I have here. तो ये मुझे मिल गया नंबर ऑफ एटम. अच्छा, अब मुझे फाइंड करना है ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड. मुझे क्या फाइंड करना है? ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल. सो इफ़ यू रिमेंबर दैट द कंसेप्ट वी डिस्कस्ड कि भाई जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उतना ऑक्टाहेड्रल वर्ड होता है और उसका ट्वाइस क्या होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड. सो फॉर ऑक्टाहेड्रल वर्ड, we know that it is equal to what? Number of atoms. ऑक्टाहेड्रल मतलब नंबर ऑफ आइटम हमें मिल गया, दैट इज 2.4098 इंटू 10 raised to 23. तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी इतना ही होगा, राइट? ओके, बी क्या बोल रहा है? अब मुझे क्या फाइंड करने बोला है? टेट्राहेड्रल वर्ड. सो इफ यू रिमेंबर टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होता है? ट्वाइस द नंबर ऑफ एटम. सो वी नो दैट नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितना होता है? Twice the number of atom, twice the number of atoms. Okay, तो number of atom कितना है? 2 into 2.4098 into 10 raised to 23. Again, if I multiply this so this become 4.818 into 10 raised to 23. तो भाई number of tetrahedral word कितना मिल गया? 4.818. अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? सी, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं? तो भाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स प्लस टेट्राहेड्रल वर्ड्स. तो ऑक्टाहेड्रल कितना मिला? ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितना है? 2.4098 into 10 raised to 23 plus 4.818 into 10 raised to 23. चलो ठीक है, ऐड करते हैं. ऐड करने पे मुझे मिलेगा समथिंग 7.227 into 10 raised to 23. तो भाई टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने मिल गए? 7.227 into 10 raised to 23. फाइन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आप लोग होमवर्क कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो. मेक श्योर सारे न्यूमेरिकल्स आप आपके बुक में करेंगे, ठीक है? और दोज हू आर नॉट सेंडिंग मी दी व्हाट्सएप होमवर्क, काइंडली डू इट. होमवर्क करो, सारे नोट्स बनाओ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दिस लेक्चर्स आर गोइंग टू बी रिपीटेड. सो मेक अ नोट ऑफ इट और सारे न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करके मुझे वापस भेजना है, राइट? थैंक यू, हैव अ नाइस डे.